নমস্কাৰ টাইম এইটোলৈ স্বাগতম জনাইছো মহিমাকসে ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই নেকি যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰক মোবাইলত কেৱল এখন ফটো তুলি আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ঘৰ লাগিব আপোনাক আধাৰ কাৰ্ড আৰু নতুনকৈ এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে বাহন থকা পৰিয়ালেও লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ যেটো পূৰ্বতে কোৱা হৈছিল বাহন থকা পৰিয়ালে লাভ নকৰে চৰকাৰী ঘৰ কিন্তু এই কথা স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে বাহন থাকিলেও আপুনি ঘৰ লাভ কৰিব আপোনাৰ মাহিলী ইনকাম যদি 15000 হয় তেন্তেও আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব কেৱল আপোনাক লাগিব এখন ৰেচন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু মোবাইলত এখন ফটো তুলি আপুনি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ আৰু নতুনকৈ 3,88,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আপুনিও শীঘ্ৰে আবেদন কৰক চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে কেৱল 7টা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন ঘৰত বহি আপোনাৰ মোবাইলতে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আহি গল কেঁচা ঘৰত থকা লোকসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ এতিয়াৰ পৰা অসমত নোহোৱা হ'ব কেঁচা ঘৰ ৰেচন কাৰ্ড যদি আপোনাৰ আছে আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই আপোনাৰ বাবে এই খবৰ জৰুৰী আপুনিও লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ বিশেষ 7টা নিয়মেৰে আপুনি পাব চৰকাৰী পকী ঘৰ কি আছে 7টা নিয়ম আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছো ভালদৰে চাই লওক কি 7টা নিয়ম তাৰ আগতে আপুনি সাজু কৰক আপোনাৰ নথিপত্ৰসমূহ যেহেতু সাজু কৰিব লাগিব গতিকে শীঘ্ৰে সাজু কৰক নথিপত্ৰ সাজু কৰক পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড বেংক একাউণ্ট আপুনি শীঘ্ৰে কৰক সাজু সক্ৰিয় ফোন নম্বৰ লাগিব ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লাগিব এইসমূহ আপুনি নথিপত্ৰ আজি সাজু কৰক আৰু আবেদন কৰক চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে কিয়নো নতুনকৈ 3,88,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ বিশেষ 7টা নিয়মেৰে আপুনি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী পকী ঘৰ চিন্তা আঁতৰাই 100টাকৈ বৃহৎ ঘোষণা দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে কোনে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ আপোনাৰ ঘৰত যদি বাহন আছে বাহন থকা পৰিয়ালেও লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ কেৱল 7টা পদ্ধতিৰে যাওক আৰু চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে কৰক আবেদন আপোনাৰ মোবাইলতে আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন এক নম্বৰতে আপুনি যদি ঘৰ পোৱা নাই এখন মাত্ৰ ফটো তুলি লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ঘৰ কেৱল মোবাইলত এখন ফটো তুলক দুই নম্বৰতে মোবাইলৰ এখন ফটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ 3 নম্বৰতে কি আছে আধাৰ নম্বৰৰ জৰিয়তে PM আৱাস যোজনাৰ পৰ্টেলত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব 4 নম্বৰতে হল 15,000 টকা মাহিলী আয় হলেও লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে বিনামূলীয়া ঘৰ 5 নম্বৰতে দুচকীয়া বাহন থাকিলেও আপুনি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে বিনামূলীয়া ঘৰ বাহন থকা পৰিয়ালেও লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে 6 নম্বৰতে 5 একৰ পৰ্যন্ত মাটি থাকিলেও লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ 7 নম্বৰতে চাওক জিঅ টেগিং কৰি থোৱা প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ গতিকে শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰক আহি গল কেঁচা ঘৰত থকা লোকসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ কেঁচা ঘৰত আৰু থাকিব নালাগে অসমৰ ৰাইজে আৰু কেঁচা ঘৰ দেখা নাপায় কেঁচা ঘৰৰ ধাৰণা অসমৰ পৰা নোহোৱা হ'ব বিশেষ 7টা নিয়মেৰে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ঘৰ 7টা নিয়ম কৰক আপোনাৰ মোবাইলত এখন ফটো তুলক মোবাইলত ফটো তুলি আপুনি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ গতিকে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে শীঘ্ৰে আপুনি আপোনাৰ নথিপত্ৰসমূহ সাজু কৰক আৰু আপোনাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেন্তে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী সকলোৰে লগত আপুনি এই খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে যেহেতু নতুনকৈ 3,88,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ গতিকে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই শীঘ্ৰে আবেদন কৰক আজি আবেদন কৰক চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে নতুনকৈ 3,88,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ গতিকে এতিয়ালৈকে যদি আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰা নাই আজি আপুনি আবেদন কৰক কেইটামান মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আৰু যদি আপুনি পূৰ্বতে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাছিল তেন্তে আপুনি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ কেৱল 7টা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব কেৱল মোবাইলত আপোনাৰ যিটো হাতত আছে মোবাইল সেই মোবাইলটোতে আপুনি এখন ফটো তুলিব পাৰিব মোবাইলত এখন ফটো তুলক আধাৰ নম্বৰ দিয়ক আৰু লাভ কৰক চৰকাৰী ঘৰ চৰকাৰী ঘৰ নোপোৱা লোকসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী হোৱাৰ পিছতো আপুনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰ অত্যন্ত জৰুৰী মোবাইলত এখন ফটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপুনি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ তাৰ বাবে আপুনি PM আৱাস যোজনাৰ পৰ্টেলত আবেদন কৰিব লাগিব PM আৱাস যোজনা পৰ্টেল পুনৰবাৰ কৈছো আপুনি নোট কৰি লওক অথবা নিউজটো শ্বেয়াৰ কৰি থওক যেতিয়া আপুনি আবেদন কৰে তৎক্ষণাৎ যাতে বিচাৰি পায় PM আৱাস যোজনা পৰ্টেল সেই পৰ্টেলটোত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰত যদি বাহন আছে বাহন থাকিলেও আপুনি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰী ঘৰ আৰু মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছো आपके पास मोबाइल होना चाहिए आधार नंबर होना चाहिए उस आधार नंबर
के पास मोटरसाइकिल टू व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब टू व्हीलर तो हर एक के पास है। गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो टू व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि टू व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रणजीत जी बैठे हैं। मकान 20 लाख में से 19 लाख से ज्यादा आपने बना के गरीबों को समर्पित कर दिए, आपका अभिनंदन। और हमने पूछा जब आ रहे थे लाभार्थी हितग्राही मकान बना कि नहीं बना, तो सबने कहा मकान बन गया। आज जिन 50,000 भाइयों ने गृह प्रवेश किया है, बहनों ने, उनको भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी कि ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया अब उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान, 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। मेरे अधिकारी यहां बैठे, और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले ही कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप, और उसके बाद अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देके सूची को पूरा कर दिया जाएगा। आवास प्लस की सूची से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार होगा। इतने मकान एक साथ कभी नहीं बने। और इतना और बताता हूं कि इन दोनों में पैसा कितना लगेगा। आज जो मकान हम देंगे, जो मैंने घोषित किया है, उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के। और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के, 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। लेकिन दादा यहीं तक नहीं रुके, उन्हें कहा भी तो कई रह गए, सर्वे में नाम छूट गए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप भी ध्यान से सुनना और बाकी को सुना भी देना कि जो मकान बचे हैं प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है। सरकार बनते ही तीसरी बार उन्होंने ये तय किया था कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में। तो जो छूट गए, बताओ भी छूट गए कि नहीं? कई लोग छूटे हैं कि नहीं? कई लोग छूटे हैं। तो अब जो छूटे हैं वो भी नहीं छूटेंगे। अब नया सर्वे शुरू किया जा रहा है, फिर से जो छूट गए हैं उनका नाम जोड़ने के लिए नया सर्वे। और नए सर्वे में भी 3 संशोधन किए। दादा 3 संशोधन किए हमने, रणजीत जी भी सुन रहे हैं। नंबर 1, यहां लखपति दीदी अभियान चल रहा है। पहले पीएम आवास योजना में यह तय कर दिया था कि 10,000 रुपया हर महीने से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसको मकान की पात्रता नहीं रहेगी। अब 10,000 रुपया तो
हमारी लखपति दीदियां ऐसे ही कमा लेती है। अगर इसी सीमा को मान लिया तो ये तो मकान की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। और इसलिए तय किया कि 10,000 नहीं 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे। सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। और इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। अब ये 3 शर्तें और हटा के अब हम सर्वे करेंगे। लेकिन दादा सही सही बोलते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार नीचे जो सर्वे करने टीम जाती है वो ही गड़बड़ कर देती है। अब ये गड़बड़ बिल्कुल निर्मूल होनी चाहिए और उसके लिए 2 काम हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे। जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉग इन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा। कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे। और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए कि कोई जानकारी गलत तो नहीं है। विभाग अपनी तसल्ली कर लेगा, लेकिन बहनें भी जाएंगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि बहन कभी गलत काम नहीं करती। जो सच होता है उसी को सच बताती है। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इस काम में लगाया जाएगा। तो मुझे लगता है फिर सर्वे की सूची से कोई नाम नहीं छूटेगा। जब खुद ही सर्वे करना है तो नाम छूटेगा नहीं। एक बात और, लखपति दीदी मैंने यहां देखी, यहां तो लखपति नहीं महालखपति दीदियां हैं, मिलेनियर दीदी, 10-10 लाख कमाने वाली। मैं इसके लिए भी हेमंत जी आपको और पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, मेरी बहनों का अभिनंदन करता हूं। और ये कहना चाहता हूं, क्यों महिलाएं गरीब रहे, क्यों हम गरीब रहे। आगे जाके अगर मुझे 6 लाख घर मिल जाता हो तो पहला चरण में जितना आवास का जियो टैगिंग हुए थे সকলোৱে একোটাকৈ ঘৰ পাই যাব। আৰু যদি আমি 6 লাখ ঘৰ পাওঁ তেতিয়াহলে যিসকলে জিঅ' টেগিং কৰি থৈ দিছিলে সকলোৱে ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। যাৰ ঘৰৰ ওপৰত এখন ছাদ নাছিলে আজি তেওঁলোকে 1,30,000 শৌচাগাৰ আজি এমৰেগাত নিজে কাম কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত অসমৰ 20 লাখ মানুহে এতিয়ালৈকে ঘৰ পাইছে। 20 লাখ মানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে আমাৰ অসমত যিমান দুখীয়া মানুহ আছে 35 লাখ দুখীয়া মানুহৰ ভিতৰত 35 লাখ দুখীয়া পৰিয়ালৰ ভিতৰত
20 লাখ দুখীয়া পৰিয়ালে ঘৰ পাইছে। মই আৰু 6 লাখ তেখেতক ঘৰ দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছো। আৰু ইয়াৰ পিছতো জিঅ' টেগিং কৰি আমি অসমৰ আটাইবোৰ দুখীয়া মানুহকে